हाय हेलो नमस्ते। मेरा नाम है द्वैपान रॉय चौधरी और आज के इस लाइव सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स लेवल का एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका लिंक पहले से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हो वहां से। तो इसको बाद में करते हैं। टू ऑफन पिकनिक प्रिपरेशन कंसिस्ट्स कंसिस्ट के साथ ऑफ होता है क्या? कंप्राइजेस कंसिस्ट ऑफ throwing throwing together some sandwiches and grabbing an apple. Okay, the conference will give us an opportunity to exchange information होगा, one of the aims होगा, so B. if you will नहीं होगा, if you eat. Okay, बाद में करेंगे इसको। graze, she was referring to the graze on his knees. There was a good grassland. Here we can gaze, वो तो GAZD होता है बस, graze. So B नहीं होगा, B नहीं होगा, so only A or C. The police grabbed the robber after a long graze. So okay, stock, you shouldn't stock at other people's religious. Mock होगा ना ये तो। The value of the company stock हो सकता है, the shop takes stock every Friday morning, so B and C. Drop, the temperature can drop while we look at a drop of rain हो सकता है, rice is the main crop होगा ये तो, A and B. Citizens should also. Okay, okay, क्या पूछा है? Incorrectly spelled, wrongly spelled, or inappropriate. Okay, citizens should also remember that vaccination crucial, ACC double accessing public. Remember vaccinate, TION होगा ना? Okay, the strictest lockdown misery number sectors. STRIC CT हो ना, CT होगा. So he was able to turn over the promotion without prejudice and applied again several years later. Turnover. Okay. No witness to the accident have come forward. Come. Have come. Has come forward होगा ना, so no witness है तो सिर्फ ये वाला पार्ट क्यों है फिर? Have came forward, so has come forward ही होगा ये तो. The people who get on in this world are the people who get up and look at the circumstances they want. They cannot fight them with them. People get up and look for circumstances. Look for. Okay, okay. So ये पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का लग रहा है मुझे, जो पहला शिफ्ट था उसके कंपैरिजन में. So when I was preparing for my final exams, I decided to study only one subject at a time. Okay, I noticed that I could learn something way faster if I immersed myself in it for a few days.
Real success happens when we focus on one thing at a time. Most of my peers studies multiple subjects a day, and I only moved on to the next when I fully grasp the material. ओके, तो थर्ड अगर डी नहीं है तो मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ओके, ए बी सी, तो सेकंड वाला ई नहीं है, थर्ड वाला डी नहीं है, फोर्थ वाला ए बी सी डी, फोर्थ वाला ई नहीं है, एंड फिफ्थ वाला ए बी सी ई नहीं है. ओके 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 ओके. सो ई अगर पहले में तो नहीं होगा, सो ई थर्ड में आएगा. सो डैश डैश ई, एंड आई ओनली मूव्ड, वेरी कुल. सो इसके पहले बी, प्रिपेयरिंग. फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड ई, फोर्थ. Focus on one thing at a time. सो डी को पहले रखते हैं और उसके बाद सी. ओके, ओके. Suppose you put $100 in a savings account that earns 10% interest after and the answers dash were less than 150. Exactly 150. The answers comprised were. Preferred या फिर comprised.
The intention was to test whether respondents dash compound interest. Understood. Interest. Alas, not not that many did. Just one third of them answered three out of the five similar multiple choice questions correctly, precisely, correctly. Answer तो correctly होता है correctly. So, so correctly. Okay. While education plays a large role in dash financial literacy, in determining, in shaping, discovering, determining. कुछ ing होगा in participating नहीं होगा in discovering तो नहीं होगा in determining. Okay. Okay. Last में बोल रहा है कि research shows that in developed countries knowledge dash a U-shaped curve. Knowledge follows U-shaped curve. In today's work environment, one of the key characteristics that companies look for in their employees is emotional intelligence. Research shows that emotional intelligence counts for twice as much as intelligence and technical skills combined. In determining who will be a key asset to the company, the concept of emotional intelligence in the workspace is the ability to understand and manage one's own emotions and understand the emotions of the of others so that they can dash on shared goals so that they can collaborate 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 consider it collaborate on collaborate collaborate on shared goals collaborate. Okay, shared goals. Employees who are able to handle their emotions effectively while also understanding the emotional needs of their colleagues can be greatly valued in any company. According to a recent study, 41% employees say they feel burned out from work, while 45% say they are emotionally drained. More importantly, around 35% of the employees report experience symptoms of depression often at work. Emotional intelligence is one of the qualities that helps maintain a company culture together in such an environment. It helps employees listen to one another, recognize and address problems without being rattled, and approach every situation with genuine concern for the feeling of the others. For the feeling of others. Okay, being rattled, nervous, bit of very supported, contrasted, admired, complicated, understood, very strong, contrasted. Get the bigger picture, better understanding. All right. Rattle and approach every situation with genuine concern for the feelings of the other. Managers have a significant influence on workspace, and so they must be the first to understand how their own emotion can affect their colleagues. The emotional intelligence in leaders demonstrates the ability to take responsibility and personal accountability and to step into such stressful situation. Companies use a variety of methods to evaluate the emotional intelligence of their employees. Pre-employment assessment allow hiring managers to get picture of the potential employees' character and interpersonal skills as well as their cognitive and communication skills. A more thorough evaluation can be made by asking candidates about their previous work experience, especially regarding the way they handle various situations at work. Additionally, reference checks with previous employers or colleagues may be used to gauge the interpersonal interaction of a person. With the increasing automation of jobs, the only role that can be fulfilled by machine will be those jobs that require situational awareness, cannot be fulfilled, situational awareness and visualizing the picture, the future.
which requires an understanding of value and emotions, and to emphasize empath- empath- empathize empathize with others. Empathize with others. In short, technical skills will need to be complemented by strong social and collaboration skills in the workplace. हाँ तो वो blank में collaboration ही होगा. In which of these statements is true? Employees require more salary. No. Manager must better emotional intelligence. हो सकता है managers must never give stressful. No. Leaders should not be personally accountable. नहीं ऐसे कोई बात नहीं. Employees without work experience are unreliable. Which of the following? Which of these functions cannot be fulfilled by machine? Understand values and emotion. Empathize. Visualize. Okay, all of the above. Which of these statement best convey the tone of the passage? More work makes employee know. Employees need to let out their emotions. Okay, हो सकता है better emotional management improves work culture. इससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं. Which of these words is closest meaning to opposite of burned out? Opposite मतलब exhausted को opposite. Overworked, tired. इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन exhausted नहीं होगा, overwork नहीं होगा, tired नहीं होगा, fatigue नहीं होगा. So opposite यही वाला होगा. Graze. So gaze होता ही है, so B नहीं होगा. ये ऑप्शन खत्म. The police grabbed the robber after a long graze. Long chase. Graze. Chase. She was referring to the graze on his knees. Graze का मतलब क्या है? Graze. For a long graze. ये तो कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका. For a long graze. इसको रखते हैं. Turn over the promotion without prejudice and applied against several years later. Without prejudice to 2% no. Do a brown study का मतलब मुझे नहीं पता. Make a close shave. Was able to turn down before. Turn down हो सकता है मतलब तभी नहीं लिया था प्रमोशन, उसके कुछ साल बाद फिर से अप्लाई किया. तो टर्न डाउन ही मुझे लगता है कि बेटर होगा. ओके, तो इस सेक्शन को सबमिट करते हैं. तरुण का स्ट्रीम ओके, अप स्ट्रीम 9 और डाउन स्ट्रीम है 33. स्टिल वाटर इतना जाना है, तो स्टिल वाटर का स्पीड कितना है 21, सो 2 आवर्स लगेगा. और अगर 21 है सो 12 है. 12 है, शिट 12 है. तो अगर 11 हो तो कम बन जाए, लेकिन 12 हो तो नहीं होगा ना. 9 एंड 33 प्लस करूंगा तो 42, 42 का आधा और माइनस करूंगा तो 24, 24 का आधा 12. ओके, डाउन स्ट्रीम जाना है ना उसको, वही सोचूं. डाउन स्ट्रीम का स्पीड 33 है, सो इक्वल टू, सो 4 आवर. इन एन एग्जामिनेशन रोशन को 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 64, 40%. टोटल 15% का डिफरेंस है ना उसका. मोर देन पास, सो 100. पासिंग मार्क्स कितना है, सो 25 कितना होगा. सो इसका कितना, ओहो, ये तो पॉइंट में आएगा लगता है. मतलब पासिंग मार्क्स एक बात तो तय है कि मोर देन पासिंग मार्क्स. हाँ, ये 100 नहीं है ना, वही मैं सोचूं. ये कितना होगा, 90, 96. ऑल राइट इनटू 25% करना है अगर मुझे, तो भाई क्या चल रहा है भाई. 64 कितना परसेंट है इसका, 64 इसका है 3/8.
2/3। सो 2/3 का मतलब है 10%, मतलब 25% है पासिंग मार्क्स। नहीं, 25 के ऊपर और 10, 35%। 5% का वैल्यू 5% मतलब भाई क्या चल रहा है ये? 40 से तो कम आएगा, इतना साफ है। ओके 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 ओके। और ये छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। If an article is sold at a discount of 100 rupees, the shopkeeper makes a profit of 140%. अगर कोई डिस्काउंट ना दे, कोई अगर डिस्काउंट ना दे तो फिर 320 में बेचेगा। डिफरेंस है 80 का, उसका ही वैल्यू क्वेश्चन बोला है 100। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो तो 125। तो 4 से 5, तो 4 से 5 125। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट है तो इज दिस एट द रेट ऑफ 3% फॉर टी ईयर्स। बट टी निकालना पड़ेगा कितना हो रहा है। ऑल राइट, सो सो 3t इंटू 14 इज 1260। इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 9। सो 3 साल। सेम अमाउंट फॉर 10% एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, सेम अमाउंट पर ही पूछा है ना, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इनकर्ड। तो सिर्फ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ही अगर पूछा हो तो इतना ही हो जाएगा। तो फिर भी ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा शायद ना। ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस by investing in the ratio 2:3, मतलब 9 का है, सो 18 और 270। सी इन्वेस्टेड 300 आफ्टर 3 मंथ्स। सो इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 4। रेशियो, सो इन दोनों का रेशियो कितना रहेगा? 2:3। ये रेशियो में ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। और इसका कितना आएगा? चेक करना ही पड़ेगा फिर तो। चेक करना ही पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, पड़ेगा। सो 3 3 9, अगर मैं काट दूं तो ऐसे 9 काटा था, 3 आया था, 9 काटा था, 2 आया था और 4 काटा था। तो 25, 25 का मतलब 5, 5 आएगा। 20 और 4 कटेगा तो 5। हाँ, सो ये वाला। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स रिकवर फॉर कोविड इन अप्रैल? अप्रैल में कितना है? ओके, अगर मैं मार्च का निकाल लूँ तो मार्च में सभी का अलग अलग है। सो 220 और 340 and 250 is 610, then 275 will 885। ये शायद 5 गुना हो इसका, मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। इसका 5 गुना, इसका 6 गुना, नहीं, 5 टाइम्स। 173 टाइम्स 5, 5136 हो रहा है ना? 38। ओके, एक और बार कर लेता हूँ। 340। ओके, 590 होगा ये। 590 तो फिर 20 कम, यानी कि 650। सो ओनली दिस। ओके, which state number of patients who recovered from COVID-19 steady decreasing? you have to increase। ओके, इंक्रीज हुआ, नहीं हो रहा है। डिक्रीज, डिक्रीज सिर्फ उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? उत्तर प्रदेश। what is the number of patients recovered from COVID-18 in 4 months? कौन से में? मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में ओके, सो ये कितना हो रहा है? 27 और 46 और 24, सो 70 टोटल अगर हो रहा है। एक सेकेंड, 39 प्लस 41 80 हो रहा है ना? 24 कहाँ से आया? इसको और इसको प्लस करके अब सही है। सो 20, the number of the difference between the total number of patients recovered from COVID-19 सो टोटल डिफरेंस पूछा है पंजाब और राजस्थान का। पंजाब राजस्थान यहाँ पे 25 प्लस, यहाँ पे माइनस का 50, 55, यहाँ पर भी माइनस का कितना आएगा भाई? 50, 75 और यहाँ पे प्लस का 5, सो 30 माइनस करूंगा 50 से 130 से, सो 100 इन February 2021 the number of reports from Punjab is how many percent more or less the number of recovered patients from Uttar Pradesh, यूपी। सो यूपी के कंपेरिजन में 115 कम है। 100, 10 कटा, ये कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार, 116 होता। सही है, 40% ऑलमोस्ट। सो रूट ऑफ दिस इज 90 प्लस ये 64, मतलब 80 से थोड़ा कम, मतलब 79, सो 169 दैट इज 13। ओके ओके, ये 13 टाइम्स 15 इज व्हाट? 13 टाइम्स 15 प्लस 15 इंटू 2, सो 15 का स्क्वायर हो जाएगा टोटल। ओके, 25% ऑफ दिस इज 12 प्लस x by 5 इक्वल टू 60, सो ये 48 आ जाएगा। 48 को गुना करूंगा तो 240, ऑप्शन नंबर बी। राइट, फिर है 125 गुना दिस, दैट मीन्स 5/4, सो 30 प्लस 60% ऑफ दिस, 6 गुना 360 प्लस 36 इक्वल टू 4x, सो 4x। कुछ गलत किया है लगता है, क्योंकि 6 का 60%, 360, हाँ सही है सही है सही। ये 30 तो नहीं कटेगा ना? ये क्या किया मैंने? 3000 होगा शायद। अब सही है। सो इसको काटूंगा तो ये 9, ओके ओके 90, और ये काटूंगा तो 750, सो 849 ऑप्शन है। 20% ऑफ दिस इज 1/5, 1/5 का मतलब है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, सो 68 इंटू 30/15, सो 2136। ओके, ये हो गया 156, सो 178। ओके, सो 24 से 10, सो 450 माइनस 19, 431। ये हो गया 8 टाइम्स 23 इंटू 8 प्लस 12 माइनस एक्स और रैदर माइनस 200 इक्वल टू एक्स। सो ये कितना होगा भाई? ओके, यूनिट डिजिट चेक कर ले तो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 0, 6 का कुछ आएगा। सही है ना? सही होगा, चलो। ओके, x बाई 13 इक्वल टू, 13 से कटेगा कौन सा कटेगा 13 से? 13 से 13 से 13 से 13 से 52 कटेगा ना? 130 कटेगा और 52 कटेगा, सो 1 दिस
All right. So 20% of this is 100 by x plus 160, 164. So 4x 25. 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 minus 245 by 35. This is 7 times equal to 18x. Oh, 5 2 2 18x. So में 4 आएगा. ओके या फिर 9 आएगा. भाई डिवाइड कर लेते हैं. 18 2 टाइम्स जाएगा. सो 29 क्योंकि हाँ 540 हो जाता है और 18 प्लस करने पे. सो 29. ओके 5 क्यूज 125 प्लस 200 इक्वल टू x प्लस 60. सो ये 60 से कटेगा तो 140. सो 265. ये हो गया 8. 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस प्लस 5. सो जाएगा तो 7. ओके सो ये 2 से कटेगा तो 16. 16 प्लस 25 41. ओके 25 22 इंटू 15. ओके 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 15 इंटू 22 माइनस 15 इंटू 10. सो 15 इंटू 12. 15 इंटू 12 माइनस 164 किसका रूट है? ये हो गया वैल्यू 180 का. 180 माइनस 16 सो 4 का रूट है. ओके 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 एक सेकंड. ये 16 है ना, 16 का स्क्वायर होगा. सो 256. ओके ड्यूरिंग अ स्टडी. ओके कुछ विजिटर्स शिमला. ओके तो करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा. 3 से वाले नहीं करना अभी. स्किप करते इसको. ऑलराइट. ओके ये माइनस माइनस ओके दोनों ही है. सो 15 13 ओके 15 11 और नीचे वाला आएगा ऐसा. ये इतने क्लोजेस्ट क्यों दिया भाई? मतलब 27 and 11. 27 11 नहीं होगा. 26 से नहीं आएगा. 25 से नहीं आएगा. 24 से नहीं आएगा. 23 एंड 15 नहीं आएगा. 22 से नहीं आएगा. 21 एंड 17. मतलब my only hope is this 7 4 2 1. ओके सो ये छोटा होएगा 27 17 और 21 से. सो दिस ऑप्शन. ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस 144. 144 मतलब 24 and 6. No. 26 and 8. ट्वेंटी फोर एंड 6. हाँ सही तो है क्या? नो 24 और 6 और यहाँ पे माइनस माइनस का आएगा 18 10. नो. ओके 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 दोनों ही माइनस का आएगा ना भाई जल्दी. 30 एंड 6. क्या सोच रहा हूँ भाई? सो ये साइन आएगा x is साइन. ओके if the mixture of alcohol and water 11 6 17 मतलब 5 टाइम्स करके. सो 55 and 30. how much water should be mixed to make the ratio 5:3. मतलब 3 लीटर मिक्स कर दो. और टैंक इज filled in. ओके C is twice as fast as B. ओके 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 A का 1 मान लो, B का 2, फिर C का 6. ओके ओके टोटल टोटल फिर हो गया 8 9. B अकेले कितने घंटे में करेगा? 36 घंटा लग जाएगा B को. with the difference between the perimeter of a square filled A and its sides is 28. perimeter. So 3A का वैल्यू बोल दिया है 48. So A is going to be 16. Okay. The side of the square filled B is 4 cm less than the side of this. So 12 करके होगा.
सो इसका स्क्वायर, ये तो देख के ही बताना था कि स्क्वायर कौन सा है, बेकार में कर रहा था इतना। The ratio of the first and the second number is 3 to 4 and the second third is 8 to 5. The sum of three numbers is 190. What is the third number? Okay, okay. So 6 6 8 5 6 and 8 14, so 19, so 10 करके है, so 50 50. Rishu deposited 950 at compound interest and gets double of itself in 4 years. और ये तो फर्क नहीं पड़ता, 4 years में डबल मिलता है, सो सो डबल 8 गुना मिलेगा, इसका 8 गुना कितना होता है? सो 0 0 4 7 6 0 0. Now this, okay. In a summer festival in Shimla, there are 4,000 visitors. 25% of the total visitors were unemployed. ये क्या जरूरत होता है कि out of this 20% are female. Okay, 1/8 of the total number of visitors are doctor 1/8 500, and out of this 50% are female. 25 of the total visitors, 25%, 1/4, फिर से 1000 are teachers. Okay, so female or male. All right. ये कितना है भाई? ये तो कुछ गंदा सा आ रहा है. ओके, क्वेश्चंस करते हैं कि अनएम्प्लॉयड फीमेल्स is to female engineers. Okay, unemployed males is to female engineers. Female 7, so 8 is to 7. Female teachers present at the festivals, what percent? Female teacher, what percent of the female doctors? So 175 होगा ना. So 175 कितना कम है 250 से? ये है 75 कम 250 से, नहीं पता कितना परसेंट. फीमेल डॉक्टर और 250, हाँ सही, नहीं पता. Male doctors and the male employed together, female doctors. Shit. Male, female. तो कट गया 600. Shit. Okay, Anil started walking from point A. He walks 10 meters to the east. Point B. A से B गया 10 meter. He takes a right turn and walks 10 meters to stop at point C. Then he takes another right turn and walks 5 meters. At point D, he again takes a right turn 5 meters to reach at point E. He takes a left turn and 5 meters and stop at point F. Okay. In which direction is Amit facing? At point F. Point F पे तो वो west दिख रहा है. What is the distance between the starting point and the end point? ये 5. In which direction Amit is facing when he reaches point C? Point C पे पहुंचते south की तरफ देख रहा था. In which direction is point D with respect to F? D कौन से D? ये D था क्या? D कौन से रेस्पेक्ट? सो ये साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट. ओके, नहीं करना. ओके, करना है. 7 students admission Monday to Sunday in the same order. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. संडे कौन एडमिशन लेता है भाई? ऑलराइट, चलो. Okay. So 2 students take admission between K and N. K takes admission before N. O takes admission on one of the days after M.
O takes after M. J takes on Wednesday. J takes on Wednesday. Only one student between J and M. Okay. Between J and M. L takes admission before M and K. L takes admission before M and K. So L ऊपर, इधर अगर दे दूं 1 2 गैप नहीं दे पाऊंगा, सो K इधर, एक सेकंड, बस M और K ना, तो L को फिर यहाँ पे दोनों जगह पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, सो कर लेता हूँ ना, क्या सोचना इतना, मतलब अगर मैं L को अगर यहाँ पे दूं तो भी हो सकता है, यहाँ पे दूं तो भी हो सकता है, ठीक है, दो जगह। P डज नॉट ऑन संडे, सो P यहाँ पे नहीं, ओके ओके ओके, K और N के बीच दो का गैप, ओके, K यहाँ 1 2 N यहाँ, सही है, 1 2 N यहाँ, यहाँ पर भी सेम ही सीन होगा ना, ओके, वही मैं सोचू ना, L टेक्स एडमिशन बिफोर, क्या कर रहा था भाई, L takes admission before M but after K. Before M. फिर तो बहुत दिक्कत होगा स्टूडेंट J and M after M before M. Okay, so L takes before M after K 1 to N. P यहाँ पे नहीं होगा शायद बोला था, सो P यहाँ पे और O यहाँ पे, is not true, not true. Okay, 3% take admission after M, ये तो ट्रू नहीं है। K takes on Monday, N takes admission immediately after J, so ठीक है दोनों। कौन सा, M सैटरडे नहीं है, N फ्राइडे नहीं है, O ट्यूसडे नहीं है, L संडे नहीं है, K मंडे, तो पहले वाला कौन सा ही देता है। Who takes on Monday, फ्राइडे, फ्राइडे कौन गया, फ्राइडे M गया है। How many person take admission between K and O, K and O, so 5, more than 3. N takes admission on which of the following days, so Thursday, okay, 8% family, 3 generation, बाद में करेंगे। Family consists of different ages, consecutive age person, age difference is only 3, क्या, aged person's age difference is only 3, E is not the youngest but is younger than D, $55 नहीं है, the age of B is 61 and is older than A, भाई इसको तो बाद में ही करेंगे। How many symbols are there which are immediately preceded by an odd number and followed by an alphabet, so symbol, letter, symbol के बाद letter नहीं है बट नहीं होगा ऐसे, सिंबल लेटर ऑड नहीं है, सिंबल 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 लेटर नहीं है, सिंबल लेटर ऑड एक, सिंबल लेटर ऑड नहीं है, सिंबल लेटर ऑड, सिंबल लेटर ऑड नहीं है, सिंबल सिंबल लेटर ऑड, so 3. If all the alphabets are dropped, which of the following will be fifth from the right end? If all the alphabets are dropped, so 1 2 3 4
5, 4. Fifth from the right. How many such vowels are there in the arrangement which are immediately followed by a consonant but not immediately preceded by a number? नंबर नहीं है बस, तो vowel consonant पहले नंबर में, so vowel consonant नहीं है, नहीं है, नहीं है. भाई एक भी तो नहीं है. consonant vowel तो है ही बहुत कम, और vowel के बाद consonant तो है ही नहीं कहीं पर. All right. E and G एक करके गैप, 2B हैश C3. ऑल राइट, बाकी देखते हैं. F H A सही है, और M W Z. तो C का जो था ये नहीं मिला. Which of the following is 15th from the right end? 15th from the right end of the 25th element from the right end. So 10th from the right end. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10th. 8 people, 4-story building. Okay. Bottom से top, 4, 3, 2, 1. So 1 is east or west. Flat 1 is situated immediately left of flat 2. So 1, 2, 1, 2. All right. RS lives on the same floor, but above the floor on which P lives. Okay. Q and R lives on the same floor. Q and R lives on the same flat, but on different floors, obviously. P and V do not live on the same. P and V in the same flat. Same flat. That means P and V are on the same floor but different flat. या फिर P और V different flat में है, ऐसे भी कुछ हो सकता है. P lives in an odd number floor but does not live on the ground floor. So फिर P तो इधर ही रहेगा. RS या फिर ओके फ्लैट तो भी मालूम नहीं है ना. P इधर या फिर P इधर. U lives below the floor on which V lives. Number floor. V lives in even number floor just above Q in the same flat. Okay. So P के ऊपर ये तो ब्लॉक्ड है दोनों. P के ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्ड है. V अगर रहता है इवन नंबर फ्लोर पे Q के जस्ट ऊपर, और मुझे लगता है और तो पिक्चर्स अगर बना लेता तो आसान होता. क्योंकि W does not live on the same floor with P. So W यहाँ पे W नहीं. Okay. So W यहाँ पे या फिर यहाँ पे. T does not live immediately right of P. Immediately left तो हो सकता है. So यहाँ पे T नहीं होगा. और Q.
Q, Q और एस पी वी अलग अलग फ्लैट में, सही है। W और P एक साथ नहीं रहेगा, मुझे देना पड़ेगा एक साथ। सो Q को यह दे दूं, चलेगा। R को इधर दे दूं, S को इधर दे दूं, P भी अलग अलग है, W P एक साथ नहीं। U lives on floor which is below floor which he lives, okay। तो फिर मैं इसको S देता हूँ, इसको ही देता हूँ W, इसको यहाँ पे Q दे दूं और यहाँ पे अगर U दे दूं तो क्या दिक्कत हो रहा है? P भी सेटिस्फाई कर रहा है, R के नीचे Q सेटिस्फाई कर रहा है, P के ऊपर ये W और P सेम फ्लैट में नहीं, V इवन नंबर, ओके। इसी को लेकर चलता हूँ। Who lives on the second floor? सेकंड Q ऑप्शन में नहीं, बहुत अच्छा। इसको अभी स्किप करता हूँ वरना एग्जाम वैसे ही खत्म है। ट्रीट का कोड है ये, सो +3 R -3 +3 -3 +3 -3 +3 ऐसे करके चल रहा है। सो P से +3 S और -3 फिर +3 R से +3 T U, R से +3 का U आएगा, ओके। नेचर का कोड क्या है? नेचर यह है, नेचर नेचर नेचर, और कहाँ है? और कहीं पर नहीं है ना, तो पा है, नी है, सो गी होगा नेचर का कोड। नी किसका कोड है? नी यहाँ पे है, नी यहाँ पे है। इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कोड नी हो गया। इंटेलिजेंट किड्स, इंटेलिजेंट यहाँ पे, किड्स यहाँ पे, किड्स यहाँ पे कॉमन है, सो ऐसे ऐसे रहेगा। और इंटेलिजेंट मतलब जी एस है ये वाला। सा आई नी गी, सा आई नी गी, सा इसका कोड होगा किड्स, सो किड्स रहेगा। आई आई सिर्फ यहाँ पे है, सो हैज आएगा। सो किड्स हैज एक ही ऑप्शन में है। लाइफ इज ब्यूटीफुल अगर ये है तो इंटेलिजेंट लाइफ, ओके ओके ओके। इज ब्यूटीफुल पहले भी है, सो पा नी, सो टा, टा रहेगा, टा रहेगा। और इंटेलिजेंट का कोड आ गया, लाइफ का कोड आ गया। भी इंटेलिजेंट का कोड चाहिए, इंटेलिजेंट का कोड यहाँ पे मिलेगा जो कि है जी, सो टा जी, जी टा, ऑलराइट। यहाँ पे 8 people, okay। There are 3 generations of family, 3 married couple, okay। C is mother of F, who is the only child. G has 2 children and has only 1 female child, okay। G has 2 children, 1 male, 1 female. E is mother of B, E is mother of B, B is paternal aunt of F, B is paternal aunt of F। एक प्लॉट तो आ गया है इधर। अगर D ग्रैंड चाइल्ड है तो D इनकी ही कोई होगा। H हैज नो सिबलिंग, ओके। H का कोई सिबलिंग नहीं है, क्या बात है, क्या ही बात है। B is paternal aunt of F, D is grandchild of G, H has no sibling and is married, ओके ओके। H का कुछ D और एक जो और मेंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। Who is father of F? A नहीं है ना, सो A।
F related to E. F, so either one or three. Gender तो डिपेंड नहीं था ना. How is H related to G? H G से H is son-in-law. ओके, ये वाला करना नहीं है. ओके, फोर्थ H, fifth E R. ठीक है, following will be the fourth of that word. ओके, सेकंड भी है ना A. So here और here, ये भी एक वर्ड है ना. सो अगर दो वर्ड हो रहा है, सो Y. स्टेज P R E S T I G E, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +1 2 3 4 5 6 7 8. So 1 2 3, और ऊपर कोई नहीं, 20 से कोई नहीं, 8 से कोई नहीं, 23 से कोई नहीं, 25 से नहीं, 15 से नहीं, 13 से नहीं, इधर नीचे और कोई नहीं. सो 3. ओके, R and S on the same floor. So R S ऐसा या फिर ऐसा. उसके बाद P नीचे रहेगा कहीं पे. So P के T does not live immediate right of P. So P को मैं ऐसे दे दूं. ओके, W does not live on the same floor with the same फ्लोर पे नहीं है बोले था. ओके, तो सेम फ्लैट पे तो हो ही सकता है. T does not. Okay, V lives an even number floor just above Q. इवन नंबर, तो ऐसे Q या फिर ऐसे Q. कौन सा वाला Q दो? does not even the U lives on the floor below which U. और कौन है? एक्चुअली P और T में से कोई एक आता. सो ओके, सेकंड फ्लोर. सॉरी, सेकंड फ्लोर में तो V है, कोई पता नहीं. मतलब पहला शिफ्ट जो था वो काफी आसान था सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन में, और मेरा मेन एग्जाम शायद थर्ड शिफ्ट में है. सो देखना पड़ेगा अभी. सोल्यूशन में चलते हैं. ओके, Q and R same. Q and R. Okay, so Q and R on the same. So Q U ऐसे कर दूं. All right. सेकंड फ्लोर सेकंड में V अगर नहीं है, so V को यहाँ पे दे दूं. Just over Q. The same flat of different floor. तो फिर यहाँ पे Q कर देता हूँ, यहाँ पे S, यहाँ पे R और यहाँ पे U. तो और एक बंदा कौन है भाई? PQRS PQSTW. So same floor, P lives. Okay, Q and R on the same flat. P and V does not live in the same flat. P and V same flat, same floor नहीं, different floor. Okay. T lives on an even number, odd number floor.
ग्राउंड फ्लोर में U lives below the floor in which V lives. W does not live with P in the same floor. P is not immediate right of P. V lives on an even number floor just above Q on the same flat different floors. So ये वाला तो सही हो गया. Which two people live on U and Q? Friends two. One V नहीं. 3 2. 1 2 W. No. 2 1 V. Twin U and S. So 2. Which of the following person lives on flat 2? Flat 2 मतलब R P T होगा. Okay, that's odd. ये क्यों नहीं किया था मैंने? ओके, नॉट ट्रू था. ओके, फिर तो अच्छा हुआ नहीं किया, लेकिन ओके गलत ही किया था. हाँ हाँ, वही सोचूं. नॉट ट्रू. ओके, इसको देखता हूँ. 7 members है, different ages. Okay, from the highest age to youngest. So 58, all right. E is not the youngest. So E के पहले कोई तो और है, but younger than D. All right. D का age 55. No. The age of B is 61. So B का age 61 है and is older than A. B is older than A. The age of the youngest person is 46. अगर 46 से शुरू हो रहा है, फिर 49, 52, 55, 58, 61 और 64. सही है. सो बी 61 पे आ गया है. ऑल राइट, 61 एंड जी इज 52. जी का एज 52 से लेस देन है. ए का एज 55 नहीं है. डी का एज भी 55 नहीं है. बी बड़ा है ए से. सो ए यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ. ऑल राइट, लेस देन 52. सो जी यहाँ या फिर जी यहाँ. जी अगर यहाँ पे आ गया तो डी इस सिनेरियो में डी यहाँ पे, ई यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. ओके, इस सिनेरियो में डी ई यहाँ आ सकता है. ओके, बी के नीचे मुझे ए भी देना है. सो ए तो एकदम नीचे भी आ सकता है, बट ए 55 नहीं है. सो ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, ए यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है. ओके, मतलब ई भी यहाँ पे आएगा, ए भी यहाँ पे आएगा, और कोई आएगा क्या? ई ए दोनों यहाँ पे आएंगे. P 61. This percent 46, which is A is older than E बोला है.
सो इफ ए इज ओल्डर देन ई, ए यहाँ पे नहीं आ सकता तो ए यहाँ पे आएगा और फिर ई यहाँ पे आएगा, सो दिस पोजीशन कैंसल्स आउट। फिर फिर ये डी भी प्लॉट करना है, ई भी प्लॉट करना है, ए भी प्लॉट करना है। ए यहाँ पे नहीं आ पाएगा, सो ए ई यहाँ पे और डी यहाँ पे। तो फिर भी तो दो स्लॉट बच गए ना मेरे। कौन कौन बाकी है अभी भी? ए बी सी, सी बाकी है, डी ई एफ, एफ बाकी है। ई इज थर्ड ओल्डेस्ट, थर्ड ओल्डेस्ट तो डी आ जाएगा। फिर ए, ओके, एफ सी डी ए, A is older than E, and D, ये दोनों में थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्यों? एक साथ है क्या? A is older than A, E and D, so A यहाँ पे, D यहाँ पे, E यहाँ पे ही होता, पॉसिबल नहीं था। A यहाँ पे, D यहाँ पे और यहाँ पे एफ सी और सी एफ। चलो फिर तो हो ही गया, डी ए एफ सी। क्वेश्चंस कर लेते हैं। 55 सी और एफ, इधर 2 और 4। यंगेस्ट पर्सन जी है, यंगर देन डी 2%। व्हाट इज द एज ऑफ ए? ए का एज 58। ऑलराइट, ये तो होना चाहिए था, हो ही गया था, लेकिन अंत में जाके गड़बड़ हो गया कुछ। ओके, इसमें कैलकुलेशन नहीं की थी। सो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, इनकर्ड एट द सेम अमाउंट। ओके, 10% पर एनम कर दिया इस बार ना, तो 3 साल, 3 साल का 10% होगा 33 पॉइंट समथिंग। मतलब ऐसे भी कर सकते थे, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, सो 1331 टाइम्स 14, 4 यूनिट डिजिट आएगा। उसके बाद मतलब 11 से कटेगा तो बस 9 10, ये नहीं कटता, 8 9, ये क्या हो गया? ये भी तो नहीं कटना, ये 9 तो ये 7 से कटता है, ये 7 से कटता है तो ये नहीं कटेगा। लेकिन 11 का मल्टीपल भी होगा ना, श्योरली होगा। कंपाउंड, ओके, ये तो टोटल आ रहा है मेरे ख्याल से, ये तो टोटल अमाउंट आ रहा है, इससे माइनस करना पड़ेगा। सो सो माइनस करेंगे तो 3 आएगा शायद। मेरे ख्याल से मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लेना ही बेहतर रहेगा। 4 2 1 3 1 6 5, so 1 3 3 1 4 3 6 8 1,
So 4634. ऑलराइट, वो पे 10% कर दिया गया था। एक सेकेंड। ओके, सो ये पे बोला गया है इससे काटूंगा तो 8 बार। सो 23 टाइम्स 8 प्लस 12 माइनस 200 इक्वल टू x। ओके, सो ये पे मैं यूनिट किया था। मैंने कहा था कि 3 टाइम्स 4 इज दिस प्लस, ओके मतलब माइनस का 4 भी आ सकता था। सो फिर माइनस का 4 ही आंसर होगा। ओके, मतलब मेरे ख्याल से फिर तो मल्टीप्लिकेशन कर लेना ही बेहतर है, अगर ऐसे गलतियां हो रही है। ये तो लगभग हो ही गया था। टोटल 4000 विजिटर्स थे, जिनमें से 1/4 अनएम्प्लॉयड और 1/8 मतलब 500 थे डॉक्टर और इंजीनियर्स थे 1500 और कुछ भी था शायद एक 25% टीचर्स थे। 25% मतलब 1000 टीचर्स थे और इंजीनियर्स थे 1500। इंजीनियर्स का तो मेल, या फिर तो मेल और फीमेल, 20% फीमेल है, 80% मेल, 1/8 50% 50-50। टीचर्स का 825 मेल्स और 175 फीमेल्स, और यहाँ पे 800 और 700 फीमेल। फीमेल टीचर प्रेजेंट एट द फेस्टिवल, फीमेल टीचर प्रेजेंट एट द फेस्टिवल, व्हाट परसेंट द फीमेल डॉक्टर्स से कितना, सो 75 हुआ था ना, तो 50 पे 10 10 330। What is the difference between the number of male doctors and male unemployed? Male doctors and male unemployed 1050, and number of female unemployed and female doctors, so 50-50 कट गया तो 600। इसको ही कर रहा था, 600 हो गया था। ओके, इंग्लिश का भी देख लेते हैं एक बार। बहुत ज्यादा गलत हो रहा है आजकल तो। ओके, फर्स्ट ब्लैंक में क्या होगा, सो फिर तो प्रॉफर्ड होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? To hold out or put forward something, someone for acceptance, proffered, given। All right, so तो कॉम्प्रोमाइज था, मुझे लगा कि कॉम्प्राइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही नहीं। ओके, ओके, प्रॉफर्ड, पुट फॉरवर्ड समथिंग, सो मैंने ए दिया था, तो फिर ओनली सी। ग्रेज, ग्रेज ही इसका स्पेलिंग। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, सो बी होगा। और ए, ग्रेज का मतलब टू स्क्रैप एंड ब्रेक द surface of the screen, graze। Okay, she's referring to the graze ones। Okay, okay, 1824 में क्या है भाई? have come 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 forward, come, no witnesses, the subject is cruel,
ओके ओके। सो नो के साथ जब प्लूरल फॉर्म लगता है तो वो टोटली प्लूरल हो जाता है। सो नो विटनेस अगर होता तो हैज कम होता। ओके 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 ओके, ठीक है। तो नो के साथ तो वैसे सिंगुलर आ जाता है, लेकिन अगर उसके साथ प्लूरल फॉर्म आ रहा है तो फिर पूरा प्लूरल के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। ऑलराइट, ये मतलब पहला वाला कैसे गलत हो सकता है? सो फिर तो सी से शुरुआत करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सो मोस्ट ऑफ माय पीयर्स स्टडीड मल्टीपल, इसके तो कोई मतलब नहीं होगा। रियल सक्सेस हैपेंस व्हेन वी फोकस वन थिंग। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस I was this, I only moved. Most of my peers did this. So first one would be C, second one would be A, third one would be B, third one is E. ये लोग कह रहे हैं कि C A E B D. ओके, सो रियल सक्सेस से ये शुरुआत होगा। फिर when I studied, I did this one subject, only moved when I did this. I noticed that this most of my peers did this. मेरे ख्याल से बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। इतने क्लोज तो आने नहीं चाहिए, मतलब चलो कोई नहीं। बाकी उतना अच्छा तो नहीं हुआ ये वाला। एक और एमबीटी बाकी है, उसमें कोशिश करते हैं कि और बेहतर करने की, लेकिन इसमें हो सकता था कट ऑफ क्लियर लगभग, लेकिन अच्छा लेवल था। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट से तो बेहतर ही था शायद, लेकिन भी देखते हैं अगला वाला कैसा रहता है। तब तक के लिए